चलिए, so in a previous lecture we have discussed about the general characters of Coelenterata, right, or which we also called as, और क्या बोल रहे थे उसको, निडेरिया। तो हमने जनरल कैरेक्टर्स के कल हमने स्टडी किया था। टुडे वी विल बी स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ Coelenterata। Coelenterata की क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, so today we'll be study the classification of निडेरिया। चलिए, सो अगर निडेरिया की क्लासिफिकेशन की बात की जाए या Coelentrates के, सो दे मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेटाजेनेसिस। चलिए बताइए, व्हाट इज मेटाजेनेसिस? मेटाजेनेसिस और वी कैन से पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? सो दिस इज द बेस फॉर द क्लासिफिकेशन। ठीक है, Coelentrates और निडेरिया के क्लासिफिकेशन के लिए व्हाट इज द बेसिस? मेटाजेनेसिस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। व्हाट इज मेटाजेनेसिस? Metagenesis is the alternation of generation of a different forms. Polymorphic forms is also again the same. When we have a different forms, either we have a polyp form or either we have a medusa form, right? So इसी बिहार पर हमने क्या किया है? क्लासिफिकेशन किया है Coelenterata phylum. It is divided into 3 different classes. 3 different classes में हम इसको divide करते हैं. The first class is we have Hydrozoa. This is our first class. Second class is Scyphozoa, right? And the third class in it we have is Anthozoa. So here we have 3 classes. The first class is Hydrozoa, the second class is Scyphozoa and the third class is Anthozoa. 3 क्लास हमारे पास हैं, कहाँ की? निडेरियंस की और Coelenterata की। So if we talking about the Hydrozoa, अगर Hydrozoa की बात की जाए, so here the example, यहाँ पर क्या example होगा? Hydra is the example. Hydra, Obelia or Physalia. These are the example, right? Here in case of Scyphozoa, the example is Aurelia, that is the jellyfish. And here in case of Anthozoa, the example is sea anemone, which is also called as Adamsia or Metridium, right? So clearly with the help of these examples it is clear that which class have metagenesis or polymorphism, right? If we talking about the Hydrozoa, अगर Hydrozoa की बात की जाए, so in Hydrozoa we have seen the metagenesis or not? बताइए। Hydra is the example, Obelia is the example, and Physalia is also the example. But the main example is Hydrozoa in it. So on the basis of Hydrozoa, as you all know that Hydrozoa is a form of polyp. Polyp की form है. So it means in case of Hydrozoa, metagenesis is not found, because here there is only what? Only a polyp form or either medusae form. It means both the things are not found in the same colony. यानी दोनों की दोनों कॉलोनी पॉलिप और मेड्यूसी हमें एक साथ नहीं मिलेगी, अलग अलग मिलेगी।
either it is polyp or either it is medusae. But in case of Aurelia के केस में क्या होगा? Aurelia में आपको क्या मिलेगी? Only medusae found predominantly. अगर बात की जाए, here predominant is polyp and here predominant is medusae. ठीक है, यहाँ पर वैसे हमें दोनों मिलती हैं, पॉलिप भी और मेड्यूसी भी, बट प्रीडोमिनेंटली इन केस ऑफ स्काइफोजोआ मेड्यूसी एंड हेयर प्रीडोमिनेंटली पॉलिप, बिकॉज एडाम्सिया इज अ फॉर्म ऑफ अ पॉलिप, क्योंकि एडाम्सिया काहे की फॉर्म है? पॉलिप की फॉर्म है. सो हेयर वी हैव कैटेगराइज्ड द कंप्लीट फाइलम into 3 classes. First class is Hydrozoa, second class is Scyphozoa and the third class is Anthozoa. ये आपके क्या दिए हैं यहाँ पर? ये these are the examples, right? इसमें जो आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो हाइड्रा का एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं. देखते हैं हाइड्रा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है, राइट? हाइड्रा की अगर बात की जाए, इफ यू ऑल नो दैट हाइड्रा इज फाउंड इन फ्रेश वाटर. कहाँ मिलता है ये आपका? फ्रेश वाटर में. एज यू ऑल नो दैट सीलेंट्रेट्स आर व्हाट? मरीन, बट हाइड्रा इज फ्रेश वाटर. लेकिन हाइड्रा कहाँ मिलेगा? फ्रेश वाटर में मिलता है, राइट? द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हाइड्रा, बीइंग अ पॉलिप, इट शोज लोकोमोशन. क्योंकि आपको पता है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिप? पॉलिप की कैरेक्टरिस्टिक है इट इज sessile. It means it remain fixed with the substratum. But here in case of hydra, it shows what? Locomotion. It shows locomotion. How it shows locomotion? कैसे शो करता है locomotion? Suppose if we just draw the body of hydra, so it is like this, vase shaped body and connected with the substratum. ये join रहता है कहाँ से? Fixed रहता है substratum से, sessile है, right? And here we have the tentacles, right? And here this is the coelentron or the cavity. ठीक है, ये कैविटी है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. सो व्हाट विल हैपन व्हेन हाइड्रा लोकोमोट, जब इसको अर्ज है काहे की लोकोमोट करने की, सो व्हाट इट डज, ये क्या करता है? इट शोज 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोशंस. 3 डिफरेंट टाइप के क्या करता है? लोकोमोशन को शो करता है. हियर इन द बेस it has a basal plate or a basal disc, we can call it as, right, through which it can attach with the substratum, जिसकी हेल्प से ये क्या करता है? substratum से अटैच करता है. so first locomotion जो इसका है वो डिपेंड करता है कहाँ पर? by the formation of bubble. ये क्या करता है? it create the bubble from the basal disc. बेसल डिस्क से ये क्या करेगा? बबल क्रिएट करेगा एंड एज द बबल क्रिएट्स, जैसे ही बबल और एयर क्रिएट होती है, डिटैच फ्रॉम द सबस्ट्रेटम, और ये सबस्ट्रेटम से क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है एंड मूव फ्रीली. और फ्री स्विमिंग क्या कर सकता है? फ्री स्विमिंग कर सकता है एंड अगेन कम बैक एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम, और दोबारा आगे क्या करता है? सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है. क्लियर हो गई बात? सो दिस इज द वन टाइप. सेकेंड कैसे कर सकता है ये लोकोमोट? with the help of tentacles. टेंटिकल की हेल्प से क्या करता है? suppose here this is the substratum, right, and here is the hydra, और ये hydra है, here are the tentacles. तो what it does, it bends like this. ये इधर की तरफ यानी ऐसे नीचे की तरफ बेंट होता है एंड बेंट होने के बाद लाइक दिस वे अपनी जो टेंटेकल्स है उन टेंटेकल की हेल्प से उन टेंटेकल्स को क्या कर लेगा? सबस्ट्रेटम से अटैच कर लेगा और यहां से क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है. इट मींस कैसे हो जाएगा ये?
रिवर्स हो जाता है, यानी कि ये वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। समझ आई बात? एंड इट क्रॉल विद द हेल्प ऑफ दीस टेंटेकल्स, और अपनी टेंटेकल की हेल्प से क्या करता है, लोकोमोट करता है। क्लियर हो गई बात? तो एक हमारा क्या हो गया, विद द हेल्प ऑफ टेंटेकल्स। और अगेन जब इसको दोबारा सबस्ट्रेटम से आना है, अगेन इट रिवर्स, दोबारा से रिवर्स हो जाता है, और अगेन फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ अ सबस्ट्रेटम, और दोबारा सबस्ट्रेटम से ये क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। क्लियर हो गई बात? एक ये वाला इसमें तरीका है लोकोमोट करने का। दूसरा जो तरीका है वो कैसा है कि सबस्ट्रेटम की हेल्प से ही मूव करता जाता है, विद द हेल्प ऑफ अ सबस्ट्रेटम, यानी यहाँ तो टेंटेकल की हेल्प से कर रहा है, टेंटेकल से चलता जाएगा। और एक मूवमेंट क्या है, एक मूवमेंट सपोज यहाँ से अटैच है, ठीक है, यहीं से ही विद द हेल्प ऑफ टेंटेकल की हेल्प से यहाँ से उठेगा, और फिर फर्दर आगे की तरफ, और फिर ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन पर, यानी अटैच होता जाएगा विद द हेल्प ऑफ द बेसल डिस्क की हेल्प से, क्रॉल नहीं करेगा टेंटेकल की हेल्प से। ये 3 तरीके हैं जिसकी हेल्प से जो हाइड्रा है वो क्या कर सकता है, लोकोमोशन को शो कर सकता है। और हाइड्रा में भी एसेक्सुअल और इट में भी सेक्सुअल भी हो सकता है, यानी रिप्रोड्यूस कर सकता है, और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करता है, बाय मींस ऑफ एक्सोजेनस बडिंग। कैसे कर सकता है, एक्सोजेनस बडिंग। कैसे होती है एक्सोजेनस बडिंग, यहाँ से एक स्मॉल बर्ड की फॉर्मेशन होती है, एंड दिस बर्ड फाइनली ग्रोज इन साइज, और यही बर्ड साइज में बड़ी हो जाती है, ग्रोज इन साइज, एंड व्हेन इट लुकिंग लाइक इट्स पेरेंट, अपने पेरेंट जैसी ये दिखने लगती है, इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है, एंड अटैचेस विद द सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाती है, एंड इंडिपेंडेंट लाइफ को क्या करती है, एंजॉय करती है। सो दिस इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, सो हाइड्रा में भी यूनिसेक्सुअल और इट में भी बाइसेक्सुअल। तो हाइड्रा कैसा हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। अगर यूनिसेक्सुअल है, सो इट फाउंड द ट्रायंगुलर शेप टेस्टिस ओवर द आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होती है, टेस्टिस प्रेजेंट होगी, ट्रायंगुलर टेस्टिस व्हिच प्रोड्यूस द sperm or male gamete, right? And if it is bisexual, so here in the lower part on the outer surface it has oval ovaries, right? And these ovaries producing the female gamete, और ये क्या बनाएंगी, female gamete बनाएंगी। क्लियर हो गई बात? So by this way हाइड्रा क्या करता है, हमारा रिप्रोडक्शन शो करता है। इफ द टेस्टिस आर प्रेजेंट, दे आर ट्रायंगुलर ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड इफ देयर इज अ ओवरीज आर ओवल एंड दे आर फाउंड एट द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी अटैच्ड टू द मेन और द आउटर बॉडी सरफेस और आउटर बॉडी लेयर। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा इफ देयर इज हाइड्रा शोज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। हाइड्रा क्या शो करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। किसके साथ शो करता है, विद एल्गी। किसके साथ शो करेगा, एल्गी। 2 तरह की एल्गी के साथ शो करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, either with brown algae or either with green algae. And when there is the association, the hydra appears green in color, तो यह hydra कैसा होगा, it is called as green hydra, right? And when it forms the symbiotic association with brown alga, it is called as brown hydra.
right? So if there is a brown hydra or a green hydra does not means the color is if its own, कि ये इसका खुद का कलर है. समझ आई बात? If we see the green hydra does not mean that green color is of hydra. That green color is due to the symbiotic association of green alga. वो जो symbiotic association बना रहा है green alga, उसकी वजह से that hydra reflects the green color and that's why that hydra is called as a green hydra. And if there is association with the brown algae, then it is called as a brown hydra. तो उसको हम क्या बोलते हैं? brown hydra बोलते हैं. ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? जू क्लोरेला. जू क्लोरेला के साथ इसके क्या होगी? एसोसिएशन होगी. ठीक है, और हेयर ब्राउन एल्गी को क्या बोलते हैं? जू फाइकोजेंथियल या जू फाइकोजेंथील, इसको हम क्या करते हैं? बोलते हैं. फाइको जो आपकी होता है यानी ये ब्राउन एल्गी होती है और यहाँ पर जू क्लोरेला है जो आपका ग्रीन एल्गा है. So this is green association and this is brown association और ये क्या है? brown association है. Commonly hydra को हम क्या बोलते हैं? Common name of hydra is a devil cup. इसको हम क्या बोल सकते हैं? devil cup बोल सकते हैं. Why it is called as a devil cup? Because it has the stinging poisonous cell on the tentacles or its outer body wall. So that's why it is also called as a devil cup or it is also called as a freshwater cnidarian or a freshwater coelenterate. Clear हो गई बात? पक्का? चलिए. Now next example is we have again a very important example, that is Obelia. Obelia commonly called as sea fir. Obelia को क्या बोला जाता है? sea fir बोला जाता है. ब्रांच्ड होती है. कैसी होती है? ब्रांच्ड. और मेनली इसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलती है? पॉलिप. पॉलिप्स फॉर्म देखने के लिए मिलती है. और ये कैसी होती है? इट इज कॉलोनियल. ठीक है, कॉलोनी में मिलती है. पूरी ब्रांच लाइक होती है और कैसे मिलती है? हमें कॉलोनी में मिलती है. कौन? ओबेलिया. नेक्स्ट फाइसेलिया. फाइसेलिया इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. फाइसेलिया इज called as commonly, very good, Portuguese man of war. What is the reason behind it? ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पोर्टुगीज. Why it is called as Portuguese man of war? इसको Portuguese man of war क्यों बोला जाता है? कहानी जुड़ी पता नहीं. Yes. इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो नेवी के पोर्टुगल शिप होते हैं, ठीक है, जब वो क्या करते हैं यानी डाइव करते हैं तो उस टाइम पे सडनली दे अपीयर्स. सडनली वो अपीयर होते हैं, दिखते हैं एंड सडनली दे डिसअपीयर. और सडनली वो क्या हो जाते हैं? डिसअपीयर हो जाते हैं इनटू द वेव्स ऑफ द सी. सी की जो वेव्स होती हैं सडनली दे अपीयर्स, वो एकदम से दिखना शुरू हो जाते हैं. सडनली दे डिसअपीयर द नेवी शिप्स ऑफ द पोर्टुगल्स. ठीक है, तो सेम द फाइसेलिया. फाइसेलिया भी क्या करती है? फाइसेलिया सडनली क्या होता है? विजिबल होता है, विजिबल टू अस एंड सडनली इट गोज डाउन इनटू द वाटर. और सडनली क्या हो जाता है? वाटर के अंदर चला जाता है. हाउ इज इट पॉसिबल? द बॉडी ऑफ फाइसेलिया इज लुकिंग लाइक दिस. Right, so this is the body of Physalia. This structure is called as pneumatophore. ये क्या है? Pneumatophore है. This pneumatophore fills with the air. और ये कहाँ से fill रहता है? Air से fill रहता है. So as the air fills in it, it comes up.
फ्रॉम द वाटर, वाटर से ही क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। एंड एज द एयर रिलीजेस फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर, जैसे ही एयर यहाँ से रिलीज होती है, इट अगेन गोज डाउन इनटू द वाटर, और फिर से क्या चला जाता है, पानी में चला जाता है। सो सडनली इट अपीयर्स और सडनली इट डिसअपीयर्स, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। एंड इट इज अ वेरी पॉइजनस, इट रिलीज, क्या होता है इसके केस में, इट हैज लॉन्ग टेंटेकल्स, इसके पास क्या प्रेजेंट होती हैं, लॉन्ग टेंटेकल्स, राइट। एंड दीज टेंटेकल्स हैव द स्टिंगिंग सेल्स, और इन टेंटेकल्स के पास क्या होता है, टेंटेकल्स हैव द स्टिंगिंग सेल्स, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट है। एंड दीज स्टिंगिंग सेल्स रिलीज द न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस which is equal to the कोबरा वेनम, जो किसके इक्वल है, कोबरा के वेनम के इक्वल होता है। समझ आ गई बात। सो इट इज deadly poisonous not only for their prey but also for the human beings, human beings के लिए भी, because it directly affect on CNS, that is central nervous system, because it is the neurotoxic, क्योंकि ये कैसा सब्सटेंस है, न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस है। क्लियर हो गई बात। सो दिस इज वी हैव द फाइसेलिया, तो ये क्या है, हमारा फाइसेलिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही आपकी एनसीईआरटी में एक और डायग्राम गिवन है, दैट इज ऑफ ओरेलिया। ओरेलिया का डायग्राम गिवन है। ओरेलिया इज कॉमनली कॉल्ड एज अ जेली फिश, कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं, जेली फिश बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ जेली फिश, बिकॉज इट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल होता है और ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट होती है इसीलिए इट लुक्स लाइक अ जेली, इसलिए क्या की तरह दिखती है, जेली की तरह दिखती है। सो दैट्स व्हाई दिस फिश इज कॉल्ड एज अ जेली फिश, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जेली फिश बोलते हैं। दिस इज नॉट अ फिश, ठीक है, इट इज नॉट द फिश, इट इज नॉट अ ट्रू फिश, ये ट्रू फिश नहीं है, बट द नेम सेज लाइक जेली फिश, इसका नाम रख दिया बिकॉज़ इट इज लुकिंग लाइक अ जेली। और ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से बाहर से ही, फ्रॉम द एक्सटर्नली हम क्या देख सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को देख सकते हैं और उनके अरेंजमेंट को देख सकते हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, ब्लूइश कलर की मेम्ब्रेन इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, जेलीफिश के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर जो खास बात है जो हमें पढ़नी है, दैट इज हाइड्रोप्रोपल्शन। इसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हाइड्रोप्रोपल्शन। हाइड्रोप्रोपल्शन इज द फॉर्म ऑफ लोकोमोशन। इसका जो लोकोमोशन है वो कैसे होता है, हाइड्रोप्रोपल्शन होता है। देखते हैं व्हाट इज हाइड्रोप्रोपल्शन। इसकी अगर बॉडी की बात की जाए ओरेलिया की, सो बिकॉज इट इज अ मेड्यूसी, क्योंकि ये क्या है, मेड्यूसा है, फ्री फॉर्म है और अम्ब्रेला शेप होती है। कैसी होती है, अम्ब्रेला शेप। लेट मी ड्रॉ इट हियर, इसको यहाँ हम ड्रॉ करते हैं। सो इट इज अम्ब्रेला शेप। कैसी है, अम्ब्रेला शेप होती है। ठीक है, like this, it is umbrella shaped। इस तरह से umbrella shaped structure होता है और यहाँ से ये transparent है, easily visible है, देख सकते हैं हम बाहर से ही। जो गोनाड्स होते हैं इसके 4 गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं, ऊपर ही जो हॉर्स शू शेप्ड होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें विजिबल होते हैं। हाफ ऑफ द गोनाड्स, एक इसका पीछे होगा, ठीक है, और ये वाले गोनाड्स हाफ दिखते हैं। तो ऊपर से अगर हम इसको देखते हैं, दिस सरफेस इज कॉल्ड एज एबोरल। कौन सी सरफेस है ये, एबोरल। और ये जो नीचे वाली सरफेस है यहाँ वाली, ये तो एबोरल हो गई। और ये वाली जो सरफेस है जहां माउथ होता है नीचे की तरफ, दिस इज ओरल। ये कौन सी सरफेस होती है, ओरल सरफेस है, जहां क्या प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है। तो यहां सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, हेयर इज द माउथ
यहाँ पे इसका सेंटर में क्या होता है, माउथ प्रेजेंट होता है, एंड फ्रॉम द माउथ इट इज सराउंडेड बाय 4 आर्म्स। ये क्या होती है, सराउंडेड होती है 4 आर्म्स से। क्या प्रेजेंट होती है, 4 आर्म्स आर प्रेजेंट, इस तरह से। ठीक है, तो क्योंकि ये माउथ को सराउंड करके रखती हैं, ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ओरल आर्म्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड एज ओरल आर्म्स, राइट। एंड पूरी बॉडी पर ऑल ओवर द पेरीफेरी पार्ट पे क्या प्रेजेंट होती हैं, टेंटेकल्स। वी हैव tentacles, and these tentacles have what, these have the stinging cells, और इन tentacles पर क्या present होते हैं, stinging cells present होते हैं, and we know that stinging cells are what, stinging cells are what, defense cells। ये defense provide करते हैं, right, एंकरिंग में भी काम करते हैं और प्रे को कैप्चर करने के लिए भी क्या आते हैं, काम आते हैं। सो द मेन थिंग इज द हाइड्रोप्रोपल्जन। हाइड्रोप्रोपल्जन क्या होता है, दिस एरिया, ये जो ऊपर वाला आपको इसका एरिया दिख रहा है, ठीक है, दिस एरिया क्या होता है, दिस एरिया इज फिल्ड विद द वाटर। ये कहाँ से फिल्ड हो जाता है, पूरा वाटर से फिल रहता है ये वाला एरिया, ठीक है। और ये क्या करती है, प्रेशर जनरेट करती है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट प्रेशर और फोर्स इट प्रोपेल्स द वाटर डाउन। ये क्या करती है, पानी को नीचे की तरफ प्रोपेल करती है। जैसे ही पानी नीचे की तरफ प्रोपेल होता है, द बॉडी शिफ्ट टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन, और इसकी जो बॉडी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है, मूव होती है। इफ यू सी इन अ डिस्कवरी, अगर आपने डिस्कवरी चैनल पे कई बार देखा हो, सो वो दिखाते हैं जेलीफिश इस तरह से जर्क के साथ क्या करती है, लोकोमोट करती है। तो वो जो जर्क ये होता है, दैट जर्क इज ड्यू टू द हाइड्रोपल्जन। वो काहे की वजह से, हाइड्रोपल्जन की वजह से इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से जर्क विद द हेल्प ऑफ अ जर्क, जर्क की हेल्प से ये क्या करती है, लोकोमोट करती है। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा द नेक्स्ट एग्जांपल इज आवर एडेम्सिया। नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल, एडेम्सिया है। एडेम्सिया, एडेम्सिया और मेट्रीडियम इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। द मोस्ट और द इंपॉर्टेंट थिंग इन इट इज इट शोज प्रोटो कॉर्पोरेशन। ये क्या शो करता है, प्रोटो कॉर्पोरेशन शो करता है विद अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। कहाँ के साथ शो करेगा प्रोटो कॉर्पोरेशन, हर्मिट क्रैब के साथ। हर्मिट क्रैब दोनों को फायदा होता है प्रोटो कॉर्पोरेशन में, हर्मिट क्रैब को भी और एडेम्सिया को भी, ठीक है, मेट्रीडियम को भी। होता क्या है, ये जो हर्मिट क्रैब है ना, ये क्रैब क्या करता है, जो आपके मॉलस्क होते हैं, मॉलस्कन के शेल्स होते हैं, तो जब शेल के अंदर से एनिमल मर जाता है, जो स्नेल उसके अंदर होता है, जब वो एनिमल मर जाता है, तो जो शेल्स होती हैं, ये हर्मिट क्रैब क्या करते हैं, उन शेल्स के अंदर चले जाते हैं और उनकी शेल्स के अंदर ही रहते हैं। आपको पता है क्योंकि क्रैब्स के पास तो अपेंडेजेस हैं बहुत सारी, तो ये शेल के अंदर से ही अपनी अपेंडेजेस बाहर निकाल लेते हैं ऐसे और मूव करते हैं। समझ आई बात, यानी जो शेल है, शेल के अंदर जाके रहते हैं ये मॉलस्कन, शेल के अंदर हर्मिट क्रैब, और अपनी अपेंडेजेस को बाहर निकाल लेते हैं और जहां भी जाना होता है शेल के अंदर ही रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। ये जो एडेम्सिया है, ये एडेम्सिया आपकी किस फॉर्म में है, पॉलिप, और पॉलिप कैसे रहती है, सेसाइल रहती है। तो ये पॉलिप आके क्या करती है, जिस जो हर्मिट क्रैब जिस स्नेल यानी जिस शेल के ऊपर है, उस शेल के ऊपर ये एडेम्सिया आके क्या कर लेता है, अपने आप को अटैच कर लेता है, ठीक है। अब क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस हर्मिट क्रैब, ये हर्मिट क्रैब क्या करता है, मूव करता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हर्मिट क्रैब दिस एडेम्सिया विल आल्सो लोकोमोट। तो ये एडेम्सिया भी क्या करता है, मूव करता है। अब ये जो एडेम्सिया है मेट्रीडियम, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसको क्या फायदा हो रहा है हर्मिट क्रैब को, ये सर, ठीक है, हर्मिट क्रैब यहाँ पर इस तरह से एक डिस्क होती है, प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है, और यहाँ से व्हाट अराइजेस, अ टेंटेकल इज अराइजेस, ठीक है। और सपोज यहाँ पर ये शेल है एंड हियर इज द हर्मिट क्रैब, ये आपका हर्मिट क्रैब है।
तो ये टेंटेकल्स क्या करती हैं, इसको कवर करके रखती हैं। और टेंटेकल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट है। तो इन स्टिंगिंग सेल्स की वजह से ये एडाम्सिया क्या करता है, इस क्रैब को प्रोटेक्ट करता है, और ये क्रैब इसको क्या प्रोवाइड कराता है, लोकोमोशन प्रोवाइड करता है। सो दिस शोज द प्रोटोकॉर्पोरेशन। तो ये क्या शो करता है, इस तरह से प्रोटोकॉर्पोरेशन को शो करता है। क्लियर हो गई बात। एडाम्सिया जिसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रीडियम भी बोलते हैं और सी एनीमोन भी इसको बोला जाता है, एडाम्सिया। ठीक है। इसके अलावा बच्चों द मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सीलम ट्रेट इज द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स। वेरी इंपॉर्टेंट। Coral is actually the exoskeleton or the deposition of calcium carbonate। ठीक है। कोरल क्या है, डिपोजिशन है काहे का, कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कौन सिक्रीट करते हैं, सीलेंट्रेट, सम ऑफ द सीलेंट्रेट। और नॉर्मली द मेंबर ऑफ एंथोजोआ, सबसे ज्यादा जो आपका कोरल यानी कि सिक्रीट करते हैं, कोरल के जो सोर्स है वो कौन करते हैं, एंथोजोआ के मेंबर करते हैं। क्लास एंथोजोआ के मेंबर सिक्रीट्स द कोरल और द सोर्स फॉर कोरल, राइट। तो ये डिपोजिशन है, या ये क्या है, जब द एनिमल डाई, जब आपका एनिमल डाई हो जाता है, सो द रिमेन इज एक्सोस्केलेटन। तो क्या बचता है, एक्सोस्केलेटन बचता है, एंड दिस एक्सोस्केलेटन इज कन्वर्टेड इनटू कोरल रीफ। और ये एक्सोस्केलेटन काहे में कन्वर्ट हो जाता है, कोरल रीफ्स में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आ गई बात। अब ये कोरल रीफ में कन्वर्ट हो गया। अब इस कोरल रीफ के ऊपर द सीलेंट्रेट्स कमिंग एंड डिपॉजिटिंग, इस तरह से इस कोरल रीफ के ऊपर वो क्या करते रहते हैं, डिपॉजिशन करते रहते हैं, और इसी तरह से एक क्या बन जाती है हमारे पास, एक लार्ज कोरल रीफ्स हमारे पास बन जाती हैं। समझ आई बात। इसी तरह से हमारे पास एक कोरल रीफ्स हैं जिनको हम बोलते हैं द ग्रेट बैरियर रीफ्स, which are found or which are present in Australia। जो कहाँ प्रेजेंट है, ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है। It is about 1920 किलोमीटर्स, राइट। ये कितनी लंबी क्या है आपकी, यानी बैरियर रीफ प्रेजेंट है, जो कहाँ देखने के लिए मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए मिलती है, जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। इसको बैरियर रीफ क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज फाउंड नियर द सी शोर। ये कहाँ मिलती है हमें, सी शोर के नजदीक मिलती है। समझ आ गई बात। एक और एग्जाम्पल इसमें हमारा है विच वी फाउंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो हमें देखने के लिए मिलती है रीफ, दैट इज कॉल्ड एज एटॉल रीफ। कौन सी रीफ, एटॉल रीफ। ठीक है। ये जो एटॉल रीफ है, इट इज समवॉट लाइक हॉर्स शू शेप और इन अ सर्कुलर फैशन। सर्कुलर फैशन में होती है, हॉर्स शू शेप हो सकती है, यानी इट फॉर्म्स द आइलैंड लाइक। ये कैसे बनती है, जैसे चारों तरफ आपके वाटर है और बीच में देयर इज अ मास ऑफ कोरल रीफ्स, और बीच में कोरल रीफ्स हैं, चारों तरफ वाटर है, इट लुकिंग लाइक अ आइलैंड। ये क्या बनाती है, आइलैंड की तरह बनती है और आइलैंड की तरह दिखती है। सो एटॉल रीफ्स आपकी देखने के लिए मिलती हैं इंडिया में इन लक्षद्वीप आइलैंड इन इंडिया। ठीक है। सो लक्षद्वीप आइलैंड इन इंडिया आर द एग्जांपल ऑफ एटॉल रीफ्स। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? And these corals are looking, they are bright, shiny, beautiful in color, so that's why these corals are also used for the ornamental purposes। और इसीलिए इन corals को हम कैसे यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी इनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात? सो दिस इज द entire about the coelentrates or the phylum Cnidaria। We have covered all the important points, जितने भी important points थे वो सब हमने cover कर लिए हैं। In the next lecture we have started the next phylum, that is Ctenophora। Clear हो गई बात? चलिए।